Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 1. And we are going to start Unit 13. Its title is The Lion and the Mouse. My dear fellow teachers, this is the SLO-based lecture division for this unit. First, we'll discuss about it, and then we'll discuss what this unit is all about. So, the SLO-based lecture division for this unit is Lecture 1 under the title of Grammar. We'll discuss about WH question words, and we will cover SLO to comprehend and respond to simple WH questions. Use questioning words what, who, where, when, and why. Lecture 2 will start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to predict a story by looking at a picture in a text. Identify names and characters in a story. Lecture 3 will continue and complete reading and understanding of the text, and we'll also cover the comprehension, and we'll cover the SLOs to interact with the text and use reading strategies while reading. To guess what follows in a story, express understanding of story through pantomime, and express likes and dislikes about the story. Lecture 4 under the title of Read and Think, we learn to recognize and categorize animals. And we'll cover the SLO to recognize and categorize animals. Lecture 5 under the title of Listening and Speaking, we learn to participate in conversation. So, and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to participate in conversation. This is the SLO-based lecture division for this unit. Now, let's see what this unit is all about. The title of the unit is The Lion and the Mouse. Its theme is peaceful coexistence, peace education, cooperating. Yes, my dear students, what this theme is telling us, peaceful coexistence. बेटा हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग और दूसरी क्रिएचर्स भी हैं. सो हमें उनके लिए भी सोचना है और अमन और यकजहती के साथ रहना है. हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. ये इस स्टोरी का थीम है, और इस स्टोरी के नाम से पता चल रहा है कि ये स्टोरी एक लाइन यानी एक शेर और एक चूहे के बारे में है. राइट तो बेटा ये जिस के बारे में स्टोरी होती है ना, वो उसके करेक्टर्स होते हैं. यानी स्टोरी के करेक्टर क्या हैं? एक शेर और एक चूहा. ये बड़ी मशहूर स्टोरी है. वन डे अ माउस रैन ओवर अ स्लीपिंग लायन. एक दिन एक चूहा एक सोते हुए शेर के ऊपर दौड़ रहा था. एंगरली, नाराजगी से, द लायन वॉक अप एंड कॉट द माउस. शेर उठा और उसने चूहे को पकड़ लिया. He was about to eat the little animal. और वो शेर जो था वो उस चूहे को खाने वाला, इस छोटे जानवर को खाने ही वाला था. The mouse cried out. वो चूहा चिल्लाया, Please, almighty king of all the jungle, spare me. जंगल के बादशाह, मेहरबानी से मुझे छोड़ दो. Spare me, मुझे जाने दो. I would be only a tiny mouthful. मैं तो आप तुम्हारा सिर्फ एक निवाला. माउथफुल का मतलब होता है बेटा एक चीज जो मुंह में रखे मुंह भर जाता है, तो जैसे एक निवाला होता है. उसने कहा मैं तो एक छोटा सा तुम्हारा निवाला हूं. And I am sure you would not like the taste. और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तो मेरा जायका भी नहीं पसंद आएगा. Besides, I might be able to help you someday. और मुझे खाने की बजाय छोड़ दो, और हो सकता है किसी दिन मैं आपकी मदद कर सकूं. The idea that this tiny creature could help him pleased the lion. ये ख्याल कि ये छोटी सी मखलूक मेरी मदद करेगी, इस पर शेर खुश हो गया. Pleased, वो खुश हो गया. So much, वो इतना ज़्यादा खुश हुआ that he let his little prisoner go. कि उसने अपने छोटे से नन्हे कैदी को जाने दिया. अच्छा चलो जाओ ऐश करो. After some time, कुछ अरसे के बाद, the lion was roaming in the forest for food.
जो शेर है वो खाने की तलाश में, अपनी खुराक की तलाश में जंगल में फिर रहा था। सडनली, अचानक से, ही वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट, वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। द मोर ही स्ट्रगल्स द मोर ही गॉट स्टक, जितनी ज्यादा वो निकलने की कोशिश करता था उतना ही ज्यादा वो फंसता गया। हिज रोर ऑफ रेज इकोड थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जो गुस्से से, नाराजगी से गुर्राया तो वो पूरे जंगल में उसकी आवाज की गूंज पैदा हुई। ईको कहते हैं ना गूंज को, तो उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। Hearing the cry, इस चीख को सुनने पर the mouse ran, वो चूहा दौड़ा to the trap, उस शिकंजे की तरफ, and began to cut the ropes, और उसने जो रस्सियां थी उस शिकंजे की उनको काटना शुरू किया। That bound the lion, जिन्होंने शेर को जकड़ रखा था। It was not long before he cut through the last rope with his little teeth, ये ज्यादा वक्त ना लगा कि उसने अपने छोटे दांतों से आखिरी रस्सी भी काट दी। एंड सेट द लाइन फ्री, और शेर को आजाद करवा दिया। राइट, अब आपने देखा कि शेर ने चूहे को पकड़ा और उसको खाने वाला था, तो चूहे ने उससे दरख्वास्त की मुझे छोड़ दो। शेर ने उस पर रहम खाया और उसको जाने दिया, और वही चूहा बाद में उसके काम आया। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिला? क्या हमारे लिए इसमें लेसन है? काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, हमेशा जो रहम दिली है उसका आपको फ़ायदा होता है। और बेटा ये फ़ायदा तो दुनिया का फ़ायदा है ना, इसका हमें आखिरत में भी फ़ायदा होता है। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं और अल्लाह ताला हमें उसका बहुत ढेर सारा अजर देते हैं। राइट, सो इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमने हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं उनके साथ नेकी का, रहमदिली का रवैया इख्तियार करना है, उससे लोग भी खुश रहेंगे और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होंगे। और आपको पता है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 143, Verily Allah is kind and merciful to the people, यकीनन अल्लाह ताला लोगों के साथ काइंड हैं और मर्सीफुल है। तो जब अल्लाह ताला हमारी इतनी गलतियां माफ़ करते हैं, हर वक्त हमें नवाजते हैं, तो बेटा हमें भी दूसरों का ख्याल रखना चाहिए कि जब किसी दूसरे को हमारे पास अगर अल्लाह ताला ने कोई हमें ऐसा इख्तियार दे दिया है तो हम उसमें दूसरों का ख्याल रखें, उनके साथ नेकी का और रहमदिली का रवैया इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ताला हम पर रहम करते हैं। जब हम लोगों पर रहम करते हैं, दूसरों पर रहम करते हैं, तो अल्लाह ताला हम पर मज़ीद रहम करते हैं। राइट, तो बेटा हमने अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम सीखते हैं ना, इनको अपने अमल में लाना है। आप अभी छोटे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो आपसे छोटे हैं आपने उनका बहुत ख्याल रखना है, उनके साथ काइंड रहें और अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करें। और ये देखें, छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, उन पर हमने ध्यान रखना है। अगर कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप उनको हेल्प कर सकते हैं तो उनको ज़रूर हेल्प करें। उनके पास अगर बहुत वज़नी कोई थैला है और आप उठा सकते हैं तो उनके साथ, बेटा ये छोटे छोटे आपने ध्यान रखना है। और कुछ नहीं तो अपने इर्द गिर्द लोगों को बार बार पानी तो पिला सकते हैं। हम पानी का एक ग्लास लेके जाएं मामा के पास, मामा आई ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। तो बेटा इस तरह से हम अच्छे तरीके से एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। राइट, ये नहीं सोचे कि हम बड़े होकर ख्याल रखेंगे, अभी से हमने जो हमारे पास पॉसिबल है उस लेवल पर हमने ख्याल रखना है। राइट, और फिर ये हमारी आदत बन जाएगी तो हम बड़े होकर भी इंशाल्लाह सबका ख्याल रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको अपने जहन में रखना है, अपने अमल में लाएं, दूसरों को भी बताएं, और इंशाल्लाह कल हम इस यूनिट के ग्रामर के लेक्चर 1 से अपने यूनिट का आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।